स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है आपको? Okay. So today we will discuss the, as we have already discussed in the last classes, how the parallel processing can be done, what are the different classifications on the basis of which the parallel processing can be done, and that is SISD, SIMD, MISD, and MIMD. Okay, so today we will try to understand if more than one processors will be there in a one structure, and if more than one memories will be there in a one structure, then how the connection can be made within those processors, and how the processors will be able to access the memory from the different memory slots. Okay, so today we'll discuss what is the memory to memory interconnection network, or what is the memory to processor, and how the processor will be able to access the data from the different memory locations. So normally two techniques are used for this particular purpose. One is called butterfly network. So if even you can see, this is the particular simple concept. I will explain it, and then we'll explain the details of this particular network with the help of one example. Then it will be easy for you to understand what is the actual concept of the butterfly network. Okay, let's suppose we are having so many processors with us, and say let's suppose we are having so many memories with us. Then how a processor will be able to access any memory, or any processor will be able to access the any memory. Okay, so to perform these operations, or to establish the interconnections between the processors and memory, we will have to develop a network, and which is called butterfly network. Okay, which is called what? Butterfly network. So it will be having nodes through which a processor can transfer or receive the data of any other memory, and at the same time any other processor will also be able to transfer or receive the data from any other memory location. Okay, so these are the some rules which are written over here. So further detail I will explain in the next slide. So this is the for interconnection. If we will have to interface the n number of processors with n number of memory modules. Let's suppose we are having n number of processors with us, and we want to interface it with the n number of or m number of memory modules. Then what we'll have to do, we will have to need how many switches? N into n. N into n. Let's suppose we are having two processors, and we want to interface it with the two memory modules. Then we require how many switches? 4. 2 into 2, 4. Okay, so how many rows will be there? Rows will be n by 2 rows are required, and log of n number of columns are required for the interconnection. Okay, so we will have to use one switch, at least we required one switch for each interconnection. So these are the switches we require, the one switch for every connection. Okay, so this is the butterfly. Now we will try to understand how a butterfly network can be established. Let's suppose, so what will be the butterfly network? The butterfly network will be, it will be a network which will, let's suppose, p number of processing nodes are there, needs. Then how many switching nodes are required? The switching nodes can be calculated by using this particular formula. इस फॉर्मूला को यूज करके हम, अगर हमारे पास p नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, तो हमें कितने नोड्स चाहिए उन p प्रोसेसर्स को आपस में इंटरफेस करने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए. That is can be calculated p into log of 2p plus 1.
कितने स्विचिंग नोड चाहिए। सो ये जो गोल राउंड वाले हैं ये स्विचिंग नोड हैं, जो मैंने गोल राउंड करके लिखे हुए ये क्या है, स्विचिंग नोड। और जो स्क्वायर में लिखे हुए हैं वो क्या है, हमारे प्रोसेसर। अब मान लीजिए कि हमारे पास 8 प्रोसेसर है। कितने प्रोसेसर हैं, 8 प्रोसेसर हैं। अब अगर हमें 8 प्रोसेसर्स को इंटरफेस करना है तो हमें कितने स्विचिंग नोड चाहिए, P इंटू लॉग 2 ऑफ P प्लस 1। तो ये कितने हो गए, पी की वैल्यू कितनी है 8, log of 2 8, log of 2 8 will be 3, 3 plus 1 4, 4 into 8 it will be 32. So we will require how many nodes, total 32 nodes are required. If you will look at this, these are the total nodes which are shown over here, 1 2 3 4 5 8 एक रो में है, 8 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, तो टोटल 32 हमें जो है वो नोड्स चाहिए। ओके, so as network shown below, the 8 processors nodes, if we are having the 8 processing nodes which require 32 switching nodes. Okay, so every node is representing with what will be the name of each node। ये नोड है, इसका नाम क्या होगा, जैसे रोज हैं और कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हमने रो इस पर्टिकुलर कॉलम को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, प्रोसेसर से। और यहाँ पे क्या होंगी, रैंक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ईच रो विल बी कॉल्ड एज रैंक। तो क्या होगी वो, रैंक होगा। तो every node will be represented with its rank number and column number, उसके रैंक नंबर और कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट होगा। so this particular node, this first node will be having rank number 0 and node number column number 0 or processor number 0, then its node number is 0 0. This is 0 1, 0 2, 0 3, 0 4 5 6 7. Similarly for this, its rank is 1 and column number is 0, so its name is 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 and so on. इसका रो नंबर कौन सा है, रैंक नंबर कौन सा है 3, और कॉलम नंबर या प्रोसेसर नंबर कौन सा है 7, इसलिए इसका नाम क्या है 3,7। इट विल बी 3,7। तो इस तरह से आप को कितने प्रोसेसर्स के लिए बटरफ्लाई नेटवर्क बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से नोड कैलकुलेट कर लोगे और उसको रोज एंड कॉलम्स में आप नोड को डिवाइड कर लो, जितने प्रोसेसर्स हो गए उतने आपके कॉलम हो गए और बाकी जो है वो रैंक बोल लो या आप उसको रोज बोल लो, उसके अकॉर्डिंगली हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको 2 या 3 लाइंस लगी हुई दिख रही है, अभी आप फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट इसको आप इफ यू विल नॉट कंसिडर इट, देन वी विल बी हैविंग व्हाट, द नोड्स, इंडिपेंडेंट नोड्स पड़े हुए जो आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। नाउ what are the different rules which will have to follow to form this particular network। अब इसको इंटरकनेक्ट कैसे करना है, ये जो नोड तो हमने बना दिए, इन नोड्स को इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे आपस में, उसके लिए देयर इज a rule। दिस इज, let's suppose we are having any I greater than 0। अब हर नोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरी स्विचिंग नोड विल बी रिप्रेजेंटेड विद I, J। हर नोड को हम I, J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, I, this particular node is n, I is equal to 0 and j is equal to 0, so that is why this particular node is 0 0। ये क्या है 0, पहला I है दूसरा j है, ये I है और ये क्या है j है। तो सिमिलरली इसका क्या है, I वैल्यू इज 1 एंड j वैल्यू इज 0। तो हम 0 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम I प्लस 1 यानी I की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो उससे स्टार्ट करेंगे। किसी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आपको 1 से करना, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन रैंक 0 वाली से नहीं कर सकते, रैंक 0 वाली से नहीं कर सकते। सो फॉर एनी I इज ग्रेटर देन 0, कि I की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, उस पर्टिकुलर स्विचिंग नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं और उस स्विचिंग नोड को हम I J तो कहते ही हैं। एंड दैट पर्टिकुलर स्विचिंग नोड, कोई भी स्विचिंग नोड जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और उसका नंबर है I, J से, विल बी कनेक्टेड टू अनदर नोड। किस नोड के साथ कनेक्टेड होगा वो, I दो जगह कनेक्ट होगा, एक I n नोड उस नोड से कनेक्टेड होगा जिसका नंबर क्या होगा I माइनस 1, J, उसका नंबर क्या होगा I माइनस 1, J, एक तो इससे कनेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, वही नोड जो Nij एक नोड है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, जो Nij नोड है, पहला तो वो कनेक्ट होगा किससे, I माइनस 1 यानी
आई माइनस वन रो के साथ कनेक्ट होगा और जे एज इट इज जे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा वो कहाँ किससे कनेक्ट होगा, आई माइनस वन रो, और जो उसका कॉलम होगा वो किससे कनेक्ट होगा, एम। एंड व्हाट इज एम, m will be the inverted bit on ith location of j। यानी ये जो j की वैल्यू होगी उसकी जो ith बिट होगी उसको हमें इन्वर्ट करके जो इक्वलेंट वैल्यू आएगी उसके साथ कनेक्ट करना है। इसके साथ कनेक्ट करना है, उसके साथ कनेक्ट करना है। अब ये j की बिट नंबर क्या होगा, जैसे ये है, लेट्स सपोज वी आर हैविंग 8 processors with us, so we will assign the value to each and every column। तो जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, क्योंकि ये 7 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1। तो ये है जे आपकी, और ये क्या है आई। ये क्या है आपकी रैंक को हमने क्या बोल दिया है आई, और इसको क्या बोल दिया है, कॉलम नंबर को क्या बोल दिया है जे। तो हम जे को, हर जे को वैल्यू हमने साइन कर दी उसके नंबर के अकॉर्डिंगली। इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 सॉरी 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। ओके, अब हमें जो नोड कनेक्ट करना है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वी वांट टू कनेक्ट नोड n1,6। हम कोई नोड n1,6, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो इसलिए ले सकते क्योंकि i की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो हम मान लीजिए हमने 1,6 को कनेक्ट करना है। तो 1,6 को कनेक्ट करने के लिए हमें इस 1,6 को दो नोड के साथ कनेक्ट करना है। पहला कौन सा होगा, ni-1 जी। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 6। सो वन नोड to which this particular node will be connected, that will be n i minus 1। i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, j की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। यानी एक नोड जिसके साथ ये 1,6 वाला नोड कनेक्ट होगा वो होगा n 0,6। अब दूसरा नोड क्या होगा, दैट विल बी n i,1। i,1 में 1, i की वैल्यू 1 है तो 0 आ गया। अब दूसरा क्या होगा m। अब m क्या है, m है कि जो भी इस नोड की j की वैल्यू है, इस नोड में j की वैल्यू क्या है 6, उस 6 वैल्यू में जो ith पोजीशन पे बिट है उसको आपको इन्वर्ट कर देना है। उसको आपको क्या कर देना है, इन्वर्ट। अगर वो 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। अब यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 6, तो j की वैल्यू है 6, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 1 1 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i in this particular node, that is equal to 1। So we will have to invert the first position bit। first position bit क्या है 1, so we will invert this 1 to 0 and then m value will become 0 1 0 and which is equal to 2। okay, so we will connect it to, we will write it over here 2। so what does it mean, the meaning of this is a node 1,6 will be connected to two nodes। वन विल बी 0,6, another will be 0,2। 0,2 हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अब इसको कहाँ से, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो एनी नोड विच इज 1,6, 1 इट विल बी कनेक्टेड टू 0,6। ये 0,6 है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा ये। तो 1 it will be connected to this one like this। another is what 0,2, जैसे हमने कैलकुलेट किया, so it will be connected to this 0,2। okay, so now we will go to the next। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज n वैल्यू इज 1,7। हम मान लो हमने 1,7 ले लिया, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या करना है, 1,7 फॉर n 1,7 व्हाट विल बी द to which node it, this particular node will be connected, 1 n minus 1 comma j। n की वैल्यू 1, सॉरी i की वैल्यू 1 है तो इट विल बी 0,0 आ गई। यहाँ पे -1 करेंगे तो j की एज इट इज। तो एक तो ये 0,7 के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा किसके साथ कनेक्ट होगा, i,1 तो वैसे 0 लिखा गया। अब m से कनेक्ट होगा। m क्या है, j की वैल्यू जो भी होगी, j की वैल्यू क्या है 7 और उसकी ith बिट, यानी ith बिट क्या है यहाँ पे 1। फर्स्ट बिट को इन्वर्ट कर देना है, जो भी इक्वलेंट वैल्यू बनेगी वो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 7, 7 की इक्वलेंट वैल्यू होती है 1 1 1 और 1 की
ith बिट क्या है, i की वैल्यू है 1, तो ith बिट क्या होगी, दिस वन, फर्स्ट बिट यही है, तो इट विल बी इन्वर्टेड, सो इट विल बिकम 0 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, इट विल बी रिटन ओवर 3। तो हमें जो 1,7 है नोड, उसको किससे कनेक्ट करना है, 0,7 और 0,3 के साथ। तो वी विल कनेक्ट दिस 1,7 विद 1 विद what 0,7 और दूसरा किसके साथ, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल कंसीडर एनी अदर। यहाँ पे जैसे मैंने 2,7 लिया है, 2,7 पे क्या होगा, 2,7 पे एक नोड हो जाएगा, इसका i की वैल्यू 2 है, तो ये i माइनस 1 मीन 1, j की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 7, तो एक नोड तो होगा इसका 1,7, और दूसरा नोड क्या होगा 1, ये 5 कहाँ से आया, 7 की वैल्यू क्या है 1 1 1, और हमने इसकी हाईएस्ट बिट जो है, अब हमें कौन सी बिट इन्वर्ट करनी है, बिट नंबर 2, ये बिट नंबर 1 है, ये बिट नंबर 2, तो बिट नंबर 1 2 क्या है 1, इसको क्या कर देना है 0, तो नई वैल्यू क्या बन जाएगी 1 0 1, सो इट विल बिकम 5, so we will write here n comma 5, so which means we will have to connect this particular node which is 2,7 will have to be connected with 1,7, एक तो इसके साथ कनेक्ट करना है, दूसरा इसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, क्या वैल्यू आई थी वहां पे 1,5, 1,5, we'll have to connect it with to the, which should be 1,3, why is 1,5, 2,7, yes 1,5, it will be connected with the 1,5, 1, okay, so it will be connected something like that. Now we will try to connect it with some any other value, and then I will tell you a shortcut how can we directly connect it without putting into this formula, फार्मूले के बिना भी कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक शॉर्टकट भी है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। अब हम मान लीजिए किसी और को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 3,7, अब 3,7 को कनेक्ट करोगे तो एक वैल्यू इसकी क्या बनने वाली है 3 है, एक नोड तो होगा 2,7, तो ये एक तो इसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या होगी 3 वैल्यू यहाँ पे है, ये 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या है 1 1 1, 7 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 1 एंड 1, और i की वैल्यू क्या है 3, तो थर्ड बिट 0 होगी, ये वाली बिट इन्वर्ट करनी है 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 हो गई पहले वाला नोड, तो आई इट विल बिकम 2,6, it will become what 2,6, we'll have to connect to this, okay, so we'll have to do something like that। अब मान लीजिए हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं 3,6 को, तो 3,6 की वैल्यू पहला नोड क्या होगा, ये 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2,6 यानी ये तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अब 2,6 6 की वैल्यू क्या है 1 1 और 0, और बिट नंबर 3 को हमें इन्वर्ट कर देना है, क्या हो जाएगा ये 1 1 1, तो इट विल हैव टू बी कनेक्टेड टू, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना, ओके। तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं ना आपको, कोई और वैल्यू भैया ये ले लीजिए, ले लो आप 2,1, 2,1 एक तो ये 1,1 के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, ओके, दूसरा किसके साथ कनेक्ट होगा, ये 2 की वैल्यू है, तो एक तो ये 1 हो जाएगा, अब 1 की वैल्यू 1 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी 0 0 1, क्या वैल्यू होगी 0 0 1, तो ये सेकंड पोजीशन हमें चेंज करनी है, इट विल बिकम व्हाट 0 1 1, 0 1 1 मींस इट विल हैव टू बी कनेक्टेड टू दिस वन, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो, ओके। So this is how can we develop the butterfly network. If you have any doubt, can ask the question. Yes, if you want to ask any question, can ask. So this is how can we develop the butterfly. So what is the shortcut to develop this butterfly is, आप इसको हाफ कर लो,
क्या कर लो आप, हाफ कर लो, और सेकंड लाइन से शुरू हो जाओ, सेकंड लाइन से शुरू हो जाओ। तो इसका पहला इसके फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर दो, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो, तीसरा तीसरे के साथ कनेक्ट कर दो, चौथा चौथे के साथ कनेक्ट कर दो, और उल्टा भी ऐसे करना शुरू कर दो। लास्ट वाले को इससे कर दो, इस वाले को इससे कर दो, इस वाले को इससे कर दो, और थर्ड वाले को जीरो वाले से कर दो। इस तरह से कनेक्शन बन जाएंगे। पहली दो रोज में जब आपको करना है, मान लीजिए आपके पास 4 कॉलम और 8 कॉलम और 4 रोज हैं, तो वो कैसे करोगे, इसको हाफ कर लो कॉलम्स को, फर्स्ट कॉलम को दूसरे पार्ट के फर्स्ट कॉलम के साथ कनेक्ट कर दो, सेकंड सेकंड नोड को दूसरे के सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह से करते करते जाओ, और फिर उल्टा कर लो, इस बार लास्ट को इस वाले लास्ट से, इस वाले लास्ट को इस वाले लास्ट से, इस वाले लास्ट को इस वाले लास्ट, और इस वाले फर्स्ट को इस वाले फर्स्ट से। तो ये हो गया आपके पहले दो के कनेक्शन, सेम ही बनेंगे जब जो इसे मैं बना रहा था। अब आपको क्या करना है, पहले आपने इसका हाफ किया था, अब आप इसका फर्दर हाफ कर दो, ये 2⁴, ये 2⁴ है, तो इस तरह से आप हाफ कर दिया। अब आप फर्दर हाफ कर दो, इसको फर्दर हाफ कर दोगे तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। सिमिलरली इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, कर दो, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब इस वाले को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना ही है, ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट होंगे ही होंगे, ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट, ये तो वर्टिकली कनेक्ट तो होंगे ही, वर्टिकली तो सारे आपस में कनेक्ट होंगे, ये तो आप बिना देखे कर दो वर्टिकली, और ये हो गया। सिमिलरली इसको फिर से आपने इस वाले पोर्शन को भी सेकंड और थर्ड के लिए हाफ कर लिया, इसके सेकंड पोर्शन के फर्स्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, और उल्टा कैसे करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, और ये आप इसको पैरेलल, तो आपने ये वर्टिकल तो कनेक्शन करने ही सारे के सारे, वर्टिकल तो सारे के सारे जोड़ने, ये कर दिए। अब यहाँ पे फिर से हाफ कर लो, लास्ट वाले में, लास्ट वाला ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, कैलकुलेट भी किया था, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ होगा, ये वर्टिकली सारे कनेक्ट होंगे, वर्टिकली सारे के सारे आपस में कनेक्ट होंगे, ओके। ये वर्टिकली जो सारे के सारे आपस में कनेक्ट होंगे, सारे नोड आपस में कनेक्ट होंगे, कोई बच गया हो तो वो आप कर लेना, सारे के सारे कनेक्ट होंगे वर्टिकली, वर्टिकली ऑल द नोड्स विल हैव टू बी कनेक्टेड। तो इसमें आपको शुरू कैसे करना है, शॉर्टकट के लिए पहली रो छोड़ देनी है, दूसरी रो जितने कॉलम है उनको 50% हाफ कर लेना है, दो पोर्शन बना लेने हैं, पोर्शन 1 पोर्शन 2, पोर्शन 1 का पहला नोड पोर्शन 2 के पहले नोड के साथ, दूसरा नोड दूसरे नोड के साथ, तीसरा नोड तीसरे नोड के साथ, चौथा नोड चौथे नोड के साथ, फिर उल्टा, लास्ट नोड उसके लास्ट नोड, अब ऊपर वाले के लास्ट नोड को नीचे वाले के लास्ट नोड से, सेकंड लास्ट विद सेकंड लास्ट, सेकंड विद सेकंड, एंड फर्स्ट विद फर्स्ट। ये आपके पहली दो जो आपके रोज हैं, ये वो आपकी इंटरकनेक्ट हो गई। अब आपको दूसरी और तीसरी को करना है, दूसरी और तीसरी करने के लिए पहले आपने दो दो पार्ट किए थे, अब आप 4 कर लोगे, यानी फर्दर 2 पार्ट्स और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। तो अब आपके 4 पोर्शन हो गए, पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ। पहले को दूसरे के साथ कब करोगे, पहले पार्ट का फर्स्ट नोड will be connected to the first node of the second part, यहाँ पे आपने हाफ कर लिया, तो इसलिए 1,0 will be connected to 2,2 and 1,1 will be connected to 2,3. Similarly 1,3 will be connected to 2,1 and 1,2 will be connected to 2,0. तो इस तरह से 4 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ, ये इसके साथ और इसके साथ। अब जब when you want to interface with the 2 with 3, what you have to do, you will have to further divide into 2 parts। पहले आपने 8 को 4 में डिवाइड किया, फिर 4 को आपने 2-2 में डिवाइड किया, अब 2-2 को 1-1 में डिवाइड कर दो, पहले का उसके लास्ट वाले पहले के साथ, इसका इसके साथ। So this is the how can we develop the butterfly network, how can we develop the butterfly network।
If you have any doubt, can ask the question. So this is all about how can we develop the butterfly network, which will be used to interface the processors with memory by using the different nodes. ये इस फार्मूले से जाओगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सब हो जाएगा वो यहाँ पे सिंपल। अगर मेथड से जाओगे तो ये, अगर आपके पास मान लीजिए 4 ही नोड हैं, 4 ही प्रोसेसर्स हैं, 4 ही प्रोसेसर्स हैं, तो उसमें आपके पास सिर्फ 3 ही होंगे ये रोज, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसको आप पहले 2 में डिवाइड कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, उल्टा, फिर ये नीचे, ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द बटरफ्लाई नेटवर्क। ओके, this is the bone network. It is a combination of both. We will discuss in the next lecture. Otherwise आप खुद कर लेना. If you have any doubt, can ask the question related to the butterfly network. Thank you. Thanks to all of you. यहाँ तक आपके वो क्विज का है। क्विज शायद कल आपका क्रैश हो गया था। यस, एनीवन शुड आंसर? मोक्ष और सौरिश, anyone should answer? Hello.